Hello students, myself Dr. Jayanta Bhattacharya and welcome to my YouTube channel. देखो हम इस टाइम क्लास 9th का हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रेवोल्यूशन ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इनका जो टाइटल है देखो इसमें क्या लिखा है, सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है, where mode of production and distribution is purely controlled by the government itself. I am just talking about the title of this chapter. So what is socialism? That means when the mode of production and distribution is purely controlled by the government itself to establish economic equality. Now the next portion is Russian Revolution. So what is revolution? Revolution means whenever the existing government is unable to fulfill the desire or needs of the ordinary people, then they adopt the violence means for overthrowing the existing government. Just consider Russia. You have to remember the Russia is not the present Russia. Earlier it was named as USSR, United States of Soviet Russia. So the geographical location of Russia is, it is attached with Asia and Europe. So the portion which is attached with the Asian region, they have Asian influence. At the same time the portion attached with Europe, they have European influence. So this is the only country where you can find the influence of both the Asia and Europe. So whenever we are talking about socialism in Europe, so in Europe you can find the prevalent system was capitalism. Capitalism. But whenever the socialism appeared, then it clashed with capitalism. That's why the problem arose. Now some concepts first you have to make it clear. What are these? Radical, that means जो लोग चाहते हैं कि अभी हमें चेंज चाहिए by adopting violent means, और जो लिबरल्स जो है ये लोग चेंज चाहते हैं लेकिन थोड़ा धीरे से, ग्रेजुअल चेंज। और कॉन्जर्वेटिव जो है ये लोग क्या चाहते हैं, नहीं जो है उसी में ही रहने दो, हमें स्टेटस को, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मॉडरेट्स कौन है, जो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस चाहते हैं। रिएक्शनरी मतलब पुट थिंग्स बैक टू द वे दे वर, जहां पे थे वहीं पे चले जाओ, इसका मतलब। सो आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। मॉडरेट्स मतलब कंजर्वेटिव मतलब तुम्हारा दादा दादी, नाना नानी, जहाँ पे हैं वहीं पे रहने दो, चेंज नहीं करना है। लिबरल कौन है, लिबरल और मॉडरेट जो है तुम्हारा पेरेंट्स, मतलब ठीक है चेंज करना है करने दो लेकिन जल्दी नहीं है। रेडिकल मतलब तुम लोग अभी चेंज चाहिए ऐसा कुछ है। सो these are the concepts you need to have to get its explanation. So here it is, what are liberals? They believed in a system which accepted all religions and not concentrate on a single religion. मतलब जो रिलीजियन है, मतलब यहाँ पे कौन कौन रिलीजियन था देखो, पहले जो है क्रिश्चियनिटी, उसके बाद बौद्धिज्म, उसके बाद हिंदुइज्म, उसके बाद इस्लामिज्म मतलब मुस्लिम्स। All these religions were there. Christianity was main prevalent and other religion was also there. So liberals जो है ये लोग चाहते हैं कि नहीं एक रिलीजन नहीं, not concentrate on a single religion but they accept all the religion. But conservative जो है ट्रेडिशनल कस्टम्स के तहत उन लोग चाहते हैं जो सोशल कल्चर पॉलिटिकल स्फेयर्स है वहाँ पे जो था स्टेटस को रहने दो। और रेडिकल्स मतलब तुम लोग क्या चाहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु डिजायर्ड अ नेशन व्हेयर द गवर्नमेंट वाज फोकस्ड
ऑन ए बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब सभी पीपल को हम लोग अटेंशन दे रहे हैं। Radicals wanted a nation in which government was based on majority of the country's population, जहाँ पे मेजोरिटी लोग जो मेजोरिटी लोग चाहते हैं वही हम लोग को करना होगा। अब देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, रशिया में क्या था और क्या क्या चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं था, फिर भी व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब whenever number of industries developed gradually or expanded the industrial region, that is called industrialization। इसमें क्या आता है, देखो इसमें मेन वुमेन चिल्ड्रेन जितना जाते हैं इन लोग फैक्ट्री में आते हैं काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ, क्या, वर्किंग आवर को लॉन्ग कर दिया और वेजेस को डाउन कर दिया। इसमें क्या होगा, डेफिनेटली इकोनॉमिक sluggishness or downwards. So unemployment was very common, particularly during the time of low demand for industrial goods। जब जिस टाइम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, मतलब मानो कि एग्रीकल्चरल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इस टाइम एग्रीकल्चरल इनपुट्स नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, इन लोगों को काम नहीं मिलेगा। सो economy will become sluggish। Next thing is opposed to the privileges of old aristocracy minded, जिन लोग एरिस्टोक्रेट था उन लोगों को कुछ प्रिविलेज मिलता था, मतलब बेस्ड ऑन बर्थ। लिबरल्स जो था उन लोग बोल रहा था कि नहीं, इसको नहीं कंटिन्यू करना है, मतलब इनको हटाना होगा। अब देखो coming of socialism to Europe minded, I am talking about Europe, not particularly in Russia। So by the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea that attract widespread attention, because during that time यूरोप में मोस्टली कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज था। जब एक नया आइडिया आ गया सोशलिज्म, बहुत अट्रैक्ट होने लगा। सोसाइटीज वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि सोशलिज्म जो है चाहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी गवर्नमेंट कंट्रोल में, सो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। एंड सो इट वाज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ दैट टाइम। सोसाइटी में जितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, मतलब रिच और पुअर के डिस्टिंक्शन के लिए इसका जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो इसको हटाना होगा। और ऑल दिस प्रॉपर्टीज मस्ट हैव टू ब्रिंग इन द गवर्नमेंट कंट्रोल। So what are the ideas of different political scientists और thinkers जो है, देखो ब्रिटिश एक मैन्युफैक्चरर था रॉबर्ट वेन। रॉबर्ट वेन sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। देखो इंडिया में जितना मल्टी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज, रिलीजियन, कल्चर, फूड हैबिट एक्सेट्रा पीपल है, उनको एक रूम में एंटर कर लिया। रॉबर्ट ओवेन वही चाहता था। लेकिन फ्रांस में जो एक इंस्टेंस है लुइस बेकन, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, मतलब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डेवलप करना होगा और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज जो है, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड, इनको हटाना होगा। अब तीसरा है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, इन लोगों का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन दोनों को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, क्यों, ताकि जो वर्कर्स है दे वुड थ्रिव इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट। दैट मीन्स अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स। इन लोगों ने बताया कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी करने के लिए तुमको कैपिटलिस्टिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना होगा, ताकि जो वर्कर्स है ये वर्कर्स का राज एस्टेब्लिश हो। अब देखो सपोर्ट्स फॉर सोशलिज्म कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। देखो बाय 1870 सोशलिस्ट्स आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, ग्रेजुअली यूरोप में स्प्रेड करने लगा। To coordinate their efforts, socialists formed an international body named Second International। This is also one marks question, एक क्वेश्चन आता है, सेकेंड इंटरनेशनल क्या है। देखो
तुमको बताना होगा बाय द 1870s socialist idea was spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed a body whose name was Second International. Very simple thing. अब देखो ये जो सोशलिज्म आया यूरोप में, एक एक कंट्री को धीरे धीरे उनको स्प्रेड करने लगा। देखो इंग्लैंड में, जर्मन में इन लोगों ने एसोसिएशन बनाने लगा। जर्मन में एक पार्टी बना लिया जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और SPD, एंड इट हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स। मतलब जर्मन में एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया और इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट भी पार्लियामेंट कैप्चर कर लिया। 1905 में सोशलिस्ट ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन इंग्लैंड, ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। देखो पहले जर्मन, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, तीनों कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता सोशलिज्म एक्सपेंशन करने लगा। अब देखो जो हम लोगों का पहला फोकस था रशियन रेवोल्यूशन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन। देखो 1917 जिस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम दो रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, एक तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, दूसरा है अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये दोनों रेवोल्यूशन को मिला के हम लोग बोल रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन। अब देखो वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, रशिया का एक्चुअल मतलब करेंट सिचुएशन के तहत उन लोगों का एक्चुअल एक्सटेंशन क्या था, अब हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। देखो करेंट जो कंट्रीज है, करेंट डे जो कंट्री है, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ऑल दीज वर द पार्ट्स ऑफ रशिया। नाउ वहाँ पे रिलीजियन क्या क्या था, देखो मैंने पहले बताया क्रिश्चियनिटी वॉज देयर, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा इन लोग कैथोलिक्स था, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ऑल रिलीजियंस वर देयर, बट ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स वर द प्रिवेलेंट। नेक्स्ट थिंग इज वहाँ पे इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। देखो रशियन पीपुल 85% पीपुल आर एग्रीकल्चरिस्ट। Naturally, development was very backward. Industries were in pockets. Few industrial area like St. Petersburg, Moscow, that means prominent towns जो था वहाँ पे थोड़ा बहुत industries था। Many factories were set up in 1890s. कब? जिस टाइम रशिया में रेलवे एक्सपेंशन हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, उस टाइम वहाँ पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज लगने लगा। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज मतलब प्राइवेट ओनर्स जो है, इन लोगों का बेसिक मोटो है कि कितना प्रॉफिट हम लोग कर सके, जितना हो सके प्रॉफिट कर लो। इसके हिसाब से गवर्नमेंट चाहते थे हम लोगों को सुपरवाइज करना होगा ताकि मिनिमम वेज जो है ठीक से रहे और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क ये भी बरकरार रखना होगा। अब देखो सोशलिज्म इन रशिया, मैं तो पहले थोड़ा बताता था कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में कैसे कैसे था। अब आया रशिया में। रशिया में क्या था, देखो बिफोर 1914 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1989। कौन बनाया, बाय द सोशलिस्ट्स। उसका आइडियोलॉजी क्या था, मार्क्सियन आइडियोलॉजीज था। सो माइंड इट, दिस इज ऑल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चन। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898। दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन। Who formed it? Socialists. What was their idea? Marxian idea. Just try to remember these things. अब देखो socialists were active in the countryside. Why? Because John Nicholas II was against these political parties. So later they formed another political party named Socialist Revolutionary Party in 1900. All these हाइट करके चल रहा था, मतलब गांव में था, टाउन में नहीं आया था, क्योंकि ये जॉन निकोलस टू का अगेंस्ट में था। जॉन निकोलस टू ऐसा नहीं चाहते थे। दिस पार्टीज स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स
and demanded that land belonged to nobles be transferred to peasants. Minded, जो rich persons था, aristocrats था, उन लोगों का लैंड ओनर था उन लोग, लेकिन ये लोग चाहते थे कि पीजेंट्स जो काम कर रहा है उनका हाथ में ट्रांसफर होना चाहिए. सो दे डिमांडेड, सो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशल रेवोल्यूशनरीज अबाउट द पीजेंट्स. देखो, सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज रिगार्डिंग पीजेंट्स का डिमांड्स क्या था. देखो, इसके हिसाब से ऑन दिस इशू this political party was divided into two segments. One is Bolshevik, another is Menshevik. Bolshevik party, the leader of Bolshevik party was Vladimir Lenin, and Menshevik party, this was during that time was in upper hand. Now, what is autocracy? Autocracy means a state or society governed by one person with absolute power, like say Hitler, Mussolini, like these. In Russia, देखो 1905 में क्या हुआ, 1905 रेवोल्यूशन, इसमें इसका थोड़ा बहुत हाईलाइट करते हैं हम लोग. देखो, टुगेदर विथ सोशल डेमोक्रेट्स द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, दोनों पार्टी एक हो गया. दे वर्क विथ पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि जॉन निकोलस जब था वहाँ पे उनका जो लेक्चर्स था वही कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. सो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने एक होके बताया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. सो इन द ईयर 1904 was a particularly bad on Russian workers. Why? देखो, essential price, the price of essential commodities was increased, but the wages declined by 20%. As a result, the economic condition of the workers became very, very weak. So these peasants gradually started to increase the get the membership of this association dramatically. क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि इसके यहाँ से ही हम लोगों को कोई सॉल्यूशन मिल सकता है. अब देखो क्या हुआ, द नेक्स्ट फ्यू डेज, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. क्यों स्ट्राइक किया? कुछ डिमांड करने लगा. क्या क्या डिमांड किया? डिमांडिंग अ रिडक्शन ऑफ द वर्किंग डे टू 8 hours. दिस इज वेरी एसेंशियल. And increase in wages and improvement in working condition. मालिकों को बताया कि देखो भाई, हमें 8 घंटा काम करना है, वेजेस थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन इन लोगों ने कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि जॉन निकोलस II तो इनके हाथ में था. इसीलिए जो कर रहा है मतलब रिगार्डिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स दे आर डूइंग. बट फादर गैपन, ही स्टार्टेड अ movement and they reached Winter Palace of Russia, but the police attacked these workers and over hundreds of workers were killed and about 300 workers were wounded. This incident took place in a Sunday, that's why it is treated as Bloody Sunday. What was the consequences of this Bloody Sunday? पता है तुम्हें? देखो, strikes, they different workers like lawyers, doctors, civil, they were engineers, all these people considered that we don't have any civil liberties, we need to have constituent assembly, otherwise we have to raise mass protest. जॉन निकोलस II ने सोचा ये तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. तब क्या किया? John Nicholas dismissed the first Duma within 75 days and established a second Duma. What is Duma? Duma is the parliament of Russia during that time. And he raised, उन लोगों ने, जॉन निकोलस II ने बताया, देखो हमारे ऊपर हम जो बोल रहे हैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हमारा अथॉरिटी जो है इसको रिडक्शन करने के लिए कोई डोंट ड्रीम अबाउट द रिडक्शन ऑफ माई पावर. सो he changed the voting law and packed the third Duma with conservative politicians.
मतलब जो एजुकेटेड इलेक्टेड होके आया उनको हटा दिया। फिर तीसरा मतलब जो कॉन्जर्वेटिव पीपल था, मतलब जो चाहते हैं कि किंग तुम ही रहो, उन लोगों को लेके एक थर्ड डूमा बना लिया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, क्योंकि इन लोग चाहते थे कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, लेकिन कॉन्जर्वेटिव जो है वो प्रेफर करता था स्टेटस को। इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि चलो ये जॉन निकोलस ने सोचा ये कॉन्जर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो है इन लोगों को लेके हम लोग एक लिबरल मतलब एक डूमा बना लेते हैं। आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम जॉन निकोलस ने सब कुछ इलीगल बता दिया, इसीलिए इन लोग काम करने लगा अनऑफिशियली बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड इलीगल। But severe restrictions were placed over the political activities. अब देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब रशिया में क्या हुआ, देखो 1914 में वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। पहला जो था पीपल को बहुत अच्छा लगा, वाह बहुत चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हम लोग बहुत खुश है। लेकिन ग्रेजुअली इन लोगों को पता चला अरे वर्ल्ड वॉर मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट इज नॉट फोकसिंग अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कैसे चलेगा। सो रशियन आर्मीज वर नॉट वेल ट्रेन्ड, सो दे लॉस्ट बैडली with the fighting with Germany and Austria. So in between 1914 and 1916, 7 million casualties took place. Now they realized नहीं हम लोगों को वार से गिव अप करना होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हो गया और जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था, गवर्नमेंट ने सोचा चलो पहले आर्मी को खाने दो, अगर आर्मी को खाना है तो सिविलियन पीपल क्या खाएगा पता नहीं, ऐसा चल रहा था। सो देयर इज सीवियर स्कैर्सिटी लगा, मतलब सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। रशियंस own industries were few in number and the country was cut off from the supplies of industrial goods by German control the Baltic Sea, क्योंकि बाल्टिक सी के ऊपर जर्मन का कंट्रोल था। उन लोगों ने सोचा कि चलो रशिया तो एनिमी है, वहाँ पे कुछ भी बाहर से नहीं लाने दूंगा, ताकि ऑर्डिनरी पीपल जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे ताकि हम लोग सही ढंग से रशिया को हरा सके। नाउ लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स आर सेंट टू फीड द आर्मीज, आर्मी को सेंड कर रहा है। इसीलिए क्या हुआ, टाउन्स में सिटीज में ब्रेड का प्राइस हाई हो गया। बाय द विंटर 1916 रायोट एट ब्रेड शॉप वर कॉमन, मतलब जहाँ पे ब्रेड बनता था वहाँ पे रायोट लग गया कि हमें चाहिए हमें चाहिए, ऐसा कुछ। अब देखो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1917 फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी में रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कॉजेस क्या था। देखो ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार का जो रूल था बहुत ऑटोक्रेट था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जितना सारा एक्सपेंडिचर हो रहा था सभी टैक्स के पैसे से, कॉमन पीपल का पैसा, लेकिन कॉमन पीपल के डेवलपमेंट करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। पीजेंट्स का कंडीशन बहुत खराब हो गया था क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा था और इतना सारा टैक्स देना होता था ताकि पीजेंट्स का कुछ भी ना रहे। इंडस्ट्रियल शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया क्योंकि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया, इसके हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होने लगा। दीज आर द प्राइम कॉजेस। अब रिजल्ट क्या हुआ, देखो एब्डिक्शन ऑफ जार एंड द एंड, मतलब जार का रूल जो 500 ईयर से चल रहा था इनको खत्म कर दिया गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर कार्नेस्की। ड्यूरिंग दैट टाइम वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, बट द कार्नेस्की ही ऑल्सो कंटिन्यूड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट द पीपल कंसिडर्ड नो ये भी ठीक नहीं चल रहा है, अब तो चेंज करना होगा। ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ, 1917 में
बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जिल, रशिया छोड़ के चले गए थे, अब लेनिन ने रशिया में आ गया, आके उन लोगों ने रशिया में लेनिन ने एक अप्रैल थीसिस इशू किया। व्हाट इज अप्रैल थीसिस? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइंड इट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। रशिया में लेनिन ने तीनों चीज पे मोस्ट एम्फेसाइज दिया। क्या क्या? फर्स्ट थिंग इज लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स को जो नोबल पीपल था, नोबलिटीज, उनके हाथ से पीजेंट्स को देना होगा। नेक्स्ट थिंग इज बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, मतलब बैंक में अगर तुम लोग पैसे डाल दो, अगर ये नेशनलाइज्ड है तो तुम सिक्योर हो सकते हो, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो कल बंद हो गया बस तुम्हारा पैसा गायब। लेकिन नेशनलाइज्ड होने से क्या होगा, गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि तुम्हारा जो पैसा है गवर्नमेंट बहुत श्योरली वापस करेगा। और क्या? नंबर 3, व्हाट टू बी क्लोज, मतलब ब्रॉट टू क्लोज, मतलब वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है इसको बंद करना होगा। तो तीनों चीज पे अप्रैल थीसिस में लेनिन अटेंशन दिया। These are the prime thing of Lenin's April thesis. He also argued that the Bolshevik party renamed itself Communist Party to indicate its new radical aims. देखो इन पार्टी का रेडिकल एम लेके चले आए। देखो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 17, इससे क्या हुआ? देखो in the countryside, peasants and the socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land, मतलब जो नोबिलिटी के पास था उन लोगों ने डिमांड किया यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस लैंड्स। encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917, मतलब उन लोगों ने लैंड को सीज कर लिया। अब देखो द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अभी अभी फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, फिर अक्टूबर में रेवोल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था कार्नेस्की की लीडरशिप में, वहां पे बोल्शेविक पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन स्टार्टेड टू ग्रो, बट दिस existing government, that is Karneski government, was feared because he set up a dictatorship. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize seizure. अब देखो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो पीजेंट्स के पास लैंड है वो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू एस्टेब्लिश सोशलिज्म। सो लैंड को सीज करना होगा, इसीलिए एक कमिटी बना दिया अंडर ट्रॉट्स्की टू सीज द लैंड्स ऑफ द पीजेंट्स सो दैट ऑल द लैंड कम अंडर गवर्नमेंट। बट रेवोल्यूशन अरोज एंड प्राइम मिनिस्टर कार्नेस्की लेफ्ट द सिटी, and by this time Bolshevik leader Lenin controlled the Moscow and Petrograd area. Now what was the impact of this revolution? देखो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फैक्ट्रीज जितना था लॉकआउट होने लगा ऑन द राइट बैंक, द डिसोल्यूशन ऑफ डूमा ये भी हो गया, द फॉल ऑफ जार पावर and the rise of Bolsheviks to power. The appointment at the beginning of military revolutionary committee appoint हुआ ताकि सही ढंग से काम कर सकते हैं। देखो what are the main causes of October revolution? फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, फिर अक्टूबर में क्यों हुआ? फर्स्ट प्रॉब्लम इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। These economic difficulties had played a major role in Jan Nicholas II's fall of power, क्योंकि इतना खराब हो गया निकोलस II के अगेंस्ट में सभी पीपल खड़े हो गए, इसीलिए इनको चेयर से हटना होगा। और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था had failed to address these problem, मतलब पीपल ने निकोलस II को हटा दिया,
कार्नेस्की के लीडरशिप में प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दिया, लेकिन कार्नेस्की भी फेल हो गया इनका डिमांड को फुलफिल करने के लिए. So the ordinary people considered the government should be replaced. Now, what changes took place after this October Revolution? Very simple. Whatever the issues raised by the April thesis of Lenin, all these things were introduced. First, banks and industries were nationalized. Government के अंदर में आ गया, मतलब government took over कर लिया. Land was declared social property, not private property, and allowing peasants to seize it from the nobility. जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, जो नोबल जितना था उनके पास जितना लैंड्स है, पीजेंट्स तुम लोग ले लो. इन अर्बन एरियाज हाउसेस आर पार्टीशन्ड अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट. जितना बड़ा रूम तुम्हें चाहिए ले लो, उसके बाद जितना सारा रह गया इनको हम लोग ऑर्डिनरी पीपल में बांट देंगे. बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड. बोल्शेविक पार्टी को नाम चेंज कर दिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक. रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, और जितना सारा पार्टी है उन लोगों को खत्म कर दिया. ओनली बोल्शेविक पार्टी विल बी द नेशनल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द नेशन ऑफ रशिया. Trade unions were kept under the control of this party. Next, secret society OGPU and NKVD. हमारे यहाँ पे जो CBI IB जो है वहाँ पे ऐसा ही कुछ OGPU और NKVD दो सीक्रेट सोसाइटी एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि जो पीपल गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करेगा, बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करेगा, उन लोगों को पकड़ लेंगे. अब देखो एक सिविल वॉर भी आ गया. क्यों? When the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. देखो बोल्शेविक ने ऑर्डर किया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसी टाइम रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप. सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स wished to go home for redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolsheviks uprising. बोल्शेविक ने इसके लिए जो अपराइजिंग किया, इन लोगों ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया. अब देखो ड्यूरिंग 1918 to 1919 ग्रीनिश एंड व्हाइटिश टू डिविजन्स वर देयर. ग्रीनिश मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो था उनको ग्रीनिश कहता था, और व्हाइटिश मतलब प्रो ज़ारिस्ट जो मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को कंट्रोल करता था. They were backed by France, American, British and Japanese troops. All these forces who were worried at the worth of socialism in Russia. देखो यहाँ पे क्या था, सिविल वॉर आ गया, लूटिंग, प्लंडरिंग, फेमिन become very much common. Most of the non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. The state the Bolshevik created from Russian Empire in December 1992. Mind it. ठीक है. अब देखो क्या हुआ, the Bolshevik forced the local government to follow. क्या क्या फॉलो करना है, like the harsh discouragement of nomadism. ये नोमैड क्या है, मतलब जो लोग यहाँ वहाँ भटकता है, घूमते रहता है, कुछ दिन यहाँ पे रहा, कुछ दिन उधर चले गए, इन लोगों को नोमैड्स कहते हैं. सो ये नोमैड्स पीपल जो है इनको एक जगह लाना है, इसीलिए क्या किया, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म एंड अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर द ओनली पार्टी सक्सेसफुल. बोल्शेविक पार्टी ये कर दिखाया. अब देखो रशिया को सोशलिस्ट बनाना है, इसके लिए क्या करना होगा, वेरी सिंपल थिंग. देखो ड्यूरिंग सिविल वॉर बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, इंडस्ट्रीज, बैंक को नेशनलाइज कर दिया, पीजेंट्स को कह दिया कि तुम लोग कल्टीवेट करो लैंड और इनको सोशलाइज कर दो. द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. पूरे कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बना दिया ताकि रशिया में प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ आए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज करे. इसके हिसाब से हम लोग देखा कि 1929 टू 1933 100% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. कोल, स्टील,
ऑयल, बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा, न्यू फैक्ट्रीज इन द सिटीज केम अप. So these are the development took place by means of socialist society. अब देखो इन लोगों ने से ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया ऐसा ही नहीं, सोशल डेवलपमेंट भी किया. क्या क्या किया? स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ा दिया, मतलब बहुत सारा स्कूल डेवलप कर दिया. अरेंजमेंट आर मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज. क्रेज बना लिया बच्चों को रखने के लिए, ताकि फैक्ट्री में जो फीमेल वर्कर्स आए, चिल्ड्रन को वहां पे छोड़ के काम करने लगे. चीप पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब हॉस्पिटल बना दिया बहुत सारा. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बना दिया. ऑल दिस आर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मेड बाय दीज पीपुल, मतलब सोशलिस्ट पीपुल. अब देखो लेनिन के बाद स्टालिन आया. स्टालिन का एक कॉन्सेप्ट था कलेक्टिवाइजेशन. फर्स्ट देखो व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन. देखो पीजेंट्स के पास छोटा छोटा लैंड था, उन लोगों ने इंडिविजुअली प्लाविंग करता था. अब देखो स्टालिन ने सोचा अगर इतना सारा लैंड को हम लोग एक जगह में लेके आए तो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग, इसको हम लोग कह रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन. देखो क्या क्या आफ्टर द डेथ ऑफ स्टालिन, लेनिन, स्टालिन पावर में आ गया एंड वहां पे कुछ इमरजेंसी मेजर्स लगा दिया. क्या क्या बोला? देखो ग्रेन प्रोडक्शन एरिया में जो है सुपरवाइज करने लगा, कितना सारा ग्रेन हो रहा है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? वहां पे जो रेडिंग कुलाक्स था, कुलाक्स मतलब जो वेल टू डू पीजेंट, मतलब रिच पीजेंट्स जो है उनके साथ बातचीत किया, उनका शॉर्टेज क्या था, उनका डिमांड क्या था, इसके हिसाब से स्टालिन ने बना दिया कलेक्टिवाइज द फार्म्स, मतलब जितना सारा फार्मर्स है एक जगह में जमीन लेके आओ, मतलब तुम्हारा मालिक, मतलब योर ओनरशिप विल रिमेन द सेम बट you need not to have any distinction among your lands, so you have to incorporate all this land come in together. This is the concept of collectivization program. Now after collectivization, production did not increase immediately because the bad harvest of 1930 to 33 led to one of the most devastating famine in Soviet Russian history, when 4 million people were died due to lack of food. Mind it. So this program was not successful. अब देखो what was the impact of the global influence of the Russian Revolution and the USSR, मतलब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोब में. देखो इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल लेवल ऑफ रशियन, क्या क्या हुआ? Bolsheviks encouraged the colonial people to follow their experiment, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना सारा कंट्रीज अब देख रहे हो इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो कॉलोनीज था. लेकिन बोल्शेविक पार्टी ने इन लोगों को इनकरेज किया, देखो हम लोग जैसे रेवोल्यूशन करके ओवरथ्रो कर दिया, तुम लोग भी हम लोगों को जैसा स्टेप्स ले सकते हो. मेनी नॉन रशियन from outside USSR participated in People's Conference of the East and the Bolshevik founded Comintern. देखो अब देखो कम्युनिस्ट पार्टीज जो है इन लोगों ने मेनी कंट्रीज में एक्सपेंशन कर लिया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में जब कम्युनिज्म एक्सपेंशन हुआ इन लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कम्युनिस्ट का. सोशलिज्म gave the world a new economic system, क्योंकि पहले only capitalistic societies was there, so the world witnessed another concept of economy, that is socialism, apart from capitalism. During that time, during the World War II, USSR had given socialism a global face and the world status. So capitalistic bloc considered it is one of the prime contender. Apart from this, there was no contender of capitalistic bloc. Socialism gave them a threat. Now the respect of the workers state filled the imagination of the people and the world. So the Comintern Socialist Party was founded by the Bolsheviks.
Now, all this discussion, from all this discussion, what we conclude? Very simple. By 1950s, it was acknowledged when the country that the style of government in Russia was not in keeping with the ideas of Russian Revolution. देखो रशियन रेवोल्यूशन में जो आइडिया से हम लोग स्टार्ट किया था 1917 में, 1950 में ऐसा कुछ नहीं था, चेंज हो गया. Industries and agriculture had developed and the poor were being fed. अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करने लगा, वेलफेयर करने लगा, मतलब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो गया. अब जो पोर है उन लोगों को खाने दिया ऐसे ही. बट इट हैड denied the essential freedom to its citizens and carried out developmental projects through repressive policies. मतलब गवर्नमेंट जो कहेगा तुम्हें वही करना होगा, तुम लोगों का ऐसा कुछ सुनना हम लोगों को नहीं सुनेंगे, मतलब हम लोग जो कहेंगे तुम्हें ऐसा ही कुछ करना होगा. सो दीज आर द चैप्टर of Russian Revolution or Socialism in Europe and Russian Revolution, chapter 2, class 9 history. This is the brief discussion for your better understanding. I hope you have better understand. So like this discussion, subscribe this channel, share it among your friends. Thank you.